the first chapter of the stars, the third. It is the story about the person who is having the daydream. So, before explaining my chapter, I am once more wanting to appeal you to be the subscriber of my channel for not getting, neglecting or missing all the notifications and all my views and all my videos. As I earlier told that I will give and provide you each and everything which will be suitable for me and for you also. In my previous videos, I have taught you so many grammar portions. If you are not there to see them, then you can now see them through my description box. In my description box, there are so many links by which you can attach and you can take the benefits of them. Now, I am here to take the chapter 1 of this standard 12 CBSE NCERT. We have done standard 10th and 9th chapters. This time, this is the 12th chapter. My senior students which are now studying in standard 12th, they urged me that ma'am, please, we are running the videos of standard 12 also. So now I am here for your choice. So let's start the video. Let's start the chapter of vistas. The third label. It is written by Jack Finney. The third label is written by Jack Finney. Jack Finney is the writer of the psychological or the man issues. Generally, he has written so many fictions about the fictionist way. So here also, he has given the information about the person who is living in US and how he has struck in the subway railway station. I think this is also the fictionist and imaginary effect or impact that how the experience was there by the character Charlie. Here is the main character Charlie, who he is having the experience, the curious experience which the writer Finney shared in a moment. So let's start. Before you read, you have ever had any curious experience which others find hard to do? The writer is wanting to say, if you are here to read this chapter, then you are lucky to see that, to face the experiences, the curious experiences which are described in this chapter, as it is not believed that so many people have heard or experienced. The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroad was swear on a stack of timetables that there are only two. The presidents of, means here is the description about the presidents. कहाँ के president? New York Central के, New York के and New Haven के. These are the three countries and the writer is saying that the president of these three countries, Hartford Railroads will swear on a stack of timetables. This is fiction. This is irony. Means the presidents are there. वो भी कसम खाएंगे stacks पर timetables की, stacks पर what is stack? A pile of objects. Means the pile of books, the pile of papers. So there were the stacks. एक ढेर लगा हुआ था timetables का. Timetable means a schedule showing time. So many papers were there. उसमें टाइम टेबल्स लिखा हुआ था कि कब कौन सी ट्रेन कौन सी बस आती है जाती है, उसका डिपार्चर टाइम, उसका अराइवल टाइम लिखा था. राइटर इज वांटिंग टू शो कि किस तरीके से एक जर्नली व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स दैट कि आप गीता पे रखकर कसम खानी है कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे. तो हियर द राइटर इज वांटिंग टू शो दैट द प्रेसिडेंट्स ऑफ दीज थ्री कंट्रीज आर देयर. वो इन पेपर्स पर, इन टाइम टेबल्स के स्टेक पर ढेर पर कसम खाते हैं, कसम खाएंगे दैट देयर आर ओनली टू. देयर आर ओनली टू. दीज आर द डिस्क्रिप्शन अबाउट द लेबर्स. मीन्स वो लोग भी कसम खाएंगे, वो लोग भी बोलेंगे कि हाँ, सिर्फ हम लोगों के सबवे में, हम लोग की ट्रेन लाइन में, हम लोग के रेलवे स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेबर्स हैं. लेबर्स क्या होता है? पार्टीशंस. क्या होता है मेट्रो सिटीज़ में? मीन्स देयर आर लेबर्स. अब इफ़ वी आर स्टैंडिंग ऑन द सेकेंड फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट लेबर. फिर हम नीचे सीढ़ी से जाते हैं, ब्रिज से सीढ़ी से उतर के नीचे जाते हैं, तो वो हमारा सेकेंड लेबर है. फिर हम
नेक्स्ट नीचे जाएंगे और नीचे सीढ़ी पर उतरेंगे, हमारा थर्ड लेवल आता है। तो उन लोगों को कहना था कि उस जगह पर वहाँ पर 2 लेवल्स हैं where there they can. So but I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. I, to whom I is referring here? Narrator. Yes, here the narrator is showing himself that he is the person who has seen the 3 levels. मतलब जो 3 प्रेसिडेंट थे उन लोगों ने तो 2 ही लेवल देखे हैं, बट हमारे जो नरेटर है उन्होंने 3 लेवल देखे हुए हैं। वो बोल रहे हैं नहीं मैं श्योर हूँ, मैं एकदम सही हूँ और मैं बोल सकता हूँ मैंने 3 लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल देखे हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या हुआ? नाम हुआ स्टेशन। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. मैंने खुद लिया कि he is too sure और कह रहा मैं गया हूँ, means I have seen the third level. चाहे कितना ही कोई प्रेसिडेंट कसम खा के बोले कि there are only 2 levels, but I have seen the third level and I have also discussed among my friends. और वो सारे फ्रेंड्स में मेरा एक फ्रेंड था साइकाइट्रिस्ट, एक साइकाइट्रिस्ट मेरा फ्रेंड है जो ये सब जानता है, मैंने उससे बात भी की है, उसको बताया भी है। I told him about the third level at Grand Central Station. I discussed with him. मैंने उसको सारा बात बताया है कि मैंने देखा है कि थर्ड लेवल उस ग्रैंड स्टेशन पर है। And he said it was a walking dream with fulfillment. He is saying that this is a waking dream. Waking dream means an involuntary dream. Means ऐसा स्वप्न जिसको हमने जागते हुए या चलते हुए देखा है, इसको बोलते हैं ना दिव्य स्वप्न। मीन्स दिन में सुबह सुबह सपना देख रहा है, जागते हुए सपना देख रहा है। तो हियर ऑल्सो हिज फ्रेंड, हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड वॉज मेकिंग फन ऑन हिम एंड ही वॉज सेइंग दैट यस, अगर आपको अपने मन की खुशी रखनी है, आपको अपने आप को पर्याप्त करना है, मीन्स इफ यू आर वांटिंग टू बी हैप्पी देन यू कैन सी द डे ड्रीम। ही इज नॉट इजीली बिलीविंग दैट देयर इज द थर्ड लेवल। वो कौन ने विश्वास कर रहा है? उस नैरेटर का, उस पर्सन का, उस मेन कैरेक्टर का फ्रेंड हु इज साइकाइट्रिस्ट। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं ना खुश हूँ, आई एम अनहैप्पी, बट इफ माई फ्रेंड विल लिसन दिस थिंग देन शी विल बी टू मच अनहैप्पी, टू मच अपसेट, एकदम पागल हो जाएगी, पागलों की तरह कि मैं ना खुश क्यों हूँ। इट शोज दैट माई वाइफ, हिज वाइफ लव्स टू मच। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. उसने मुझे ये भी समझाया क्यों मैं अनहैप्पी हूँ, because this world is not full of achievements, this world is not full of happiness, here is war, fear, लड़ाई है, युद्ध है, दुख है, यहाँ खुशी नहीं है, यहाँ चिंताएं हैं, that's why we are not happy in this world. So he is explaining that his friend is said that I am unhappy because this world is not fulfilled, this world is full of happiness. उसका बस यही एक कारण है, मुझे अंदर से इंटरनली कोई अनहैप्पीनेस नहीं है, मैं सिर्फ इस दुनिया की इनसिक्योरिटी के कारण, इस भय के कारण ही मैं खुश हूँ। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, वेल हू डजंट। उसका कहना था इन सारी चीज़ों से ही मैं भागना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा स्वप्न देख लिया कि मैं एक नई दुनिया उजागर करने जा रहा हूँ। नई दुनिया से मतलब थर्ड लेवल, ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, जो सबवे स्टेशन पे बना ही नहीं है, उसकी मैंने कल्पना कर ली, उसकी सोच ली। क्यों? क्योंकि मैं सारे दुख से भागना चाह रहा हूँ, सारी लड़ाई से, युद्ध से, जो इनसिक्योरिटी है इस दुनिया की, उससे अलग हटना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना दिमाग उधर तरफ सेट कर लिया। एवरीबडी आई नो wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. This is obvious ना, nobody wants to engage in this fear, anxiety, unhappiness। हाँ, तो ऐसे राइटर बोल रहा है, नैरेटर बोल रहा है, हाँ, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो दुख को, युद्ध के अंदर एंगेज होना चाहे। Nobody will be there to face them all the things. Nobody will be there to be happy, to engage in these things. So, but मेरे अलावा कोई और ऐसा व्यक्ति भी नहीं होगा जो थर्ड लेवल में जा सके, इस ग्रैंड सबवे स्टेशन के थर्ड लेवल में जा सके और वहाँ जाने की सोच सके। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ, बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। बोल रहा है यस, दिस इज द ओनली रीजन बाय विच आई केम हियर। मैं यहाँ आया था और मेरे सारे फ्रेंड्स भी मेरे से एग्री हुए थे, संतुष्ट हुए।
everything points to it. They claim my stamp collection. फिर एक नई चीज़ आती है, एक मेरे को शो करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कैसे दुनिया से भाग रहा हूँ. मेरे दोस्त एक दूसरी चीज़ पे पॉइंट आउट करते हैं, दूसरी चीज़ उठाते हैं. वो क्या चीज़ है? माई स्टैम्प कलेक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूजीज फॉर रियलिटीज. यहाँ पे क्या शो किया गया है कि जर्नली जो पीपल होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो भागना चाहते हैं रियलिटीज से. रियलिटीज यहाँ पे क्या शो करी गई है? वाह, फियर, इनसिक्योरिटी. तो उसके दोस्त भी बोल रहे हैं कि तुम इन सब इनसिक्योरिटी से भागना चाह रहे हो. दैट्स वाई यू आर देयर टू कलेक्ट द स्टैम्प्स ऑल्सो. तुम नई नई ऐसी चीज़ें कर रहे हो, ऐसी हॉबी ले रहे हो जिससे तुम इस दुनिया से भाग सको. टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. हियर द रिफ्यूजी मीन द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ. बोलते हैं ना खाना बदोश, इधर से उधर भागने वाला, इधर से उधर जाने वाला, शरण लेने वाला एक जगह से दूसरी जगह. तो यहाँ पर भी वही मीनिंग है कि आप जो सच्चाई है, दुनिया की युद्ध, इनसिक्योरिटी है, फियर है, उन सब से आप भागना चाह रहे हो. इसलिए आप अपने आप को दूसरी जगह इंगेज कर रहे हो. पहली चीज़ में वो कहाँ इंगेज किया? थर्ड लेवल घूम रहा, अपने दिमाग को ऐसी जगह बिठा लिया जहाँ जो कुछ है ही नहीं. दूसरी चीज़ क्या है? वो स्टैम्प कलेक्ट करना. स्टैम्प जान रहे हैं ना? हाँ, द पेपर, द स्टैम्प्स विच आर स्टिक्ड ऑन द एनवलप्स. जब चिट्ठी आती, लेटर आता है, उसमें छोटा सा एक कार्ड होता है, एक थोड़ा सा स्टैम्प होता है, उसको उस पर पैसा पॉइंट्स लिखे होते हैं. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refugee from reality. Now he is wanting to explain more and more. अच्छा, मैं रियलिटी से भाग रहा हूँ, तो मेरे दादाजी तो नहीं थे जो रियलिटी से भागेंगे. मेरे दादाजी को कोई आवश्यकता नहीं थी. दैट टाइम देयर वर नो एनी वॉर, एनी फियर, इनसिक्योरिटी. तो थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन दिस डे. किन दिनों में? जब दादाजी हुआ करते थे. मीन्स उन पुराने सालों में, उन 50-60 साल 70 साल पहले तो कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी. सब अच्छी चीज़ें थी, उनको तो कभी ज़रूरत नहीं हुई भागने की दुनिया से. बट फ्रॉम ऑल आई हियर दैट ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. मैंने भी बहुत लोगों से सुना है, मैंने भी अपने एंसेस्टर से सुना है कि वो हुआ करते थे, वो भी कलेक्शन किया करते थे. किस चीज़ का? स्टैम्प्स का. तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी. तुम लोग मुझे बोल रहे हो तुमको दिक्कत है, तुम रियलिटी से भाग रहे हो. दैट्स वाई यू आर हियर टू कलेक्ट द स्टैम्प्स. बट माई ग्रैंडफादर ऑल्सो वॉज हियर. आई हैव ऑल्सो हर्ड. सो ही इज वॉन्टिंग टू एक्सप्रेस. समझाना चाह रहा है अपने दोस्तों को कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो रियलिटी से भागे वही स्टैम्प करें. इट इज़ नाइस कलेक्शन टू. ब्लॉग्स ऑफ 4 of practically every US issue. First day covers and so. This is the nice collection. This is not the way to refuse from reality, but this is the good hobby. And इस हॉबी को बड़े बड़े लोगों ने भी किया है. ये US का भी एक इशू रहा है और ये फर्स्ट डे कवर्स भी रहा है. फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है? कभी कभी होता है कि कोई अपने आप को ही लेटर लिखता है, एनवलप पे स्टैम्प डालता है और उसको एक यादगार के रूप में उसको सजाकर शोकेस में रखता है. बोला इसी तरह की चीज़ें भी बहुत हुआ करते थे. US में भी ऐसा होता है. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू नो, मतलब अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहा है. पहले दादाजी का एग्जाम्पल दिया, उसने प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल दे दिया रूजवेल्ट का, कि वो भी तो थे जिन्होंने स्टैम्प कलेक्टिंग का हॉबी रखा हुआ था. सो क्लियर अप टू हियर? हाँ. सो ही इज नॉट wanting to be the psychiatrist person, and he is also not wanting that he is refugees from the reality. So he is trying to give the explanation more. Now the next paragraph. Anyway, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. अब वो थोड़ा सा रियलिटी बता रहा है कि क्या हुआ था कि जब मैं ग्रैंड सेंट्रल पे गया था. जब मैं व्हाट इज ग्रैंड सेंट्रल? द स्टेशन, द नेम ऑफ द स्टेशन. तो बता रहा है कि क्या हुआ था. मीन्स द इंसिडेंट वॉज देयर. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. वो स्ट्रक हो गया था ऑफिस में, उसे काफ़ी देर लग गया था, रात हो गई थी, वो वहाँ से निकल रहा था. आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. It shows कि जर्नली वो बस से आया करता था अपने घर, लेकिन उसने सोचा भी देर हो गई है तो बस के मुकाबले जो सबवे है वो मुझे थोड़ा सा जल्दी पहुंचा दे.
तो ऐसे उसने सोचा कि वो अब इस समय सबवे जाए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाए और वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़े और वहाँ से वो अपने घर आ जाए। तो now I don't know why they should have happened to me. He is explaining something was happened here. उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसे नहीं समझ में सक रहा था कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ था। I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old. Here in this paragraph, the writer has described about the person, the character, the narrator, whose name was Charlie. Who was Charlie? Who has seen the third level. जिसने तीसरा लेवल देखा था सबवे पे, ग्रैंड मेट्रो स्टेशन पे, वो व्यक्ति का नाम चार्ली था एंड ही इज 31 years old. तो वो भी एक सोच रहा था कि मैं एक नॉर्मल सा गाय हूँ, मीन्स नॉर्मल सा पर्सन हूँ, पीपल हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। एंड आई वॉज वियरिंग इन अ tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. He is describing about his dress, his appearance. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो 31 ईयर्स का था और उसने एक टैन मीन्स ब्राउनिश कॉफ़ी कलर का एक लंबा सा कोट पहने हुआ था। गैबरडाइन सूट मतलब पूरा सूट था और वो सूट बहुत लॉन्ग सूट सा था। उसने एक स्ट्रॉ हैट भी पहनी थी, स्ट्रॉ तिनके से बनी हुई, बांस से बैम्बू हैट्स होते हैं, उस गोल्डन कलर के उसने वो हैट पहनी हुई थी एंड अराउंड द हैट देयर वाज अ फैंसी बेल्ट। I passed a dozen men who looked just like me. मैं एक दर्जनों आदमी इसके बीच में से गुजरता हूँ, मीन्स जहाँ मैं गुजरा हूँ वहाँ थोड़ा सा क्राउड था एंड आई सॉ so many people were there just like me. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to lay some my life. I didn't notice anything. उसके दिमाग में कुछ नहीं था. Only just he was thinking that he is wanting to go home early and he is wanting to meet his wife Louisa. सिर्फ लेट हो गई थी उसको, इस कारण से उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि जल्दी से जल्दी वो घर पहुंच जाए और अपनी वाइफ से मिल सके। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. अब बोल रहा वो मेन लेवल पे आ गया, फर्स्ट लेवल पे आ गया ग्रैंड सेंट्रल, और बोल रहा था कि मैं जल्दी जल्दी चल रहा था, मैं फर्स्ट लेवल पे आया, फर्स्ट लेवल से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, मैं जाने की कोशिश कर रहा था। वेयर यू टुक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। इस फर्स्ट लेवल पे क्या होता है, 20th सेंचुरी की ट्रेन्स जाया करती थी। इट मीन्स दिस स्टोरी इज नियर अबाउट द 19th सेंचुरी, सॉरी 19th ईयर्स। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद में दूसरे लेवल पर जाने की सोच रहा था, मैं गया जल्दी से वहाँ उतरता हूँ। एंड वेयर द सबवन ट्रेन्स लीव्ड फ्रॉम डक्ड इनटू अ आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सब। हियर इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सबवे स्टेशन कि किस तरीके से वो स्टेशन पे आया, कैसे वहाँ भीड़ थी, कैसे वो वहाँ से उतरता हुआ चलता हुआ गया। फर्स्ट लेवल पे वो चल रहा था, फर्स्ट लेवल पे ऐसी ट्रेन थी चल रही थी जो 20th सेंचुरी की तरह। सेकेंड लेवल पे आता है, सेकेंड लेवल पे वो देखता है, सेकेंड लेवल पे ट्रेन्स चल रही थी जो सब अर्बन ट्रेन्स थी, सब अर्बन्स जो कुछ कुछ अर्बन एरियाज में जाया करती थी। वहाँ से वो गुजरता हुआ एक डक्ट क्या होता है, आर्च की तरफ से एक गोलाई वाले गेट था, जस्ट लाइक द इंडिया गेट। उस कर्व वाले गेट की तरफ से निकलता है, डोर से निकलता है, और जो वो अपने थर्ड लेवल के पास पहुँचना चाहता है, लेकिन वहाँ जाकर वो हो जाता है। In the sense, there were so many people, so among them he was confused where he has to go. कहाँ उसको जाना है, वो खो जाता है। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. मेरे लिए बहुत आसान था थर्ड लेवल पर जाना। रोज में मतलब अधिकतर मोस्टली मैं वहाँ से निकला करता था, मुझे आइडिया था। बट इस टाइम क्या हुआ कि मैं यहाँ फंस गया, स्ट्रक हो गया, और मैं हजारों बार इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से निकल चुका था, जा चुका था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेल एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन हर बार में बम्पिंग हो जाता था, मीन्स टकराता था। मुझे दिखाई देते थे कि नए नए डोरवेज आ गए, नए नए दरवाजे हैं, नए नए खिड़कियाँ हैं, नए नए कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर्स हैं। मुझे हर बार नए नए तरीके से रास्ते से जाना पड़ता था। Once I got in a tunnel about a mile long and came up in the lobby of the Roosevelt. पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो
कैसे कैसे मैं सबवे पे आया, कैसे मैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पर आया, किस तरीके से उसने स्टेयर्स कॉरिडोर्स को क्रॉस किया, कैसे वो आर्चवे रोड से डोरवे से निकल के जाता है। फिर वो बोल रहा है कि फिर मेरे को एक टनल मिलती है, टनल गुफा की तरह से एक रास्ता, मैं उस टनल से निकलता हूँ अबाउट अ माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील दूर तक मैं चलता रहा, एंड केम आउट इनटू द लॉबी ऑफ द रोजगार्ड। फिर कहीं जाकर मुझे रोजगार्ड होटल की एक लॉबी मिलती है, एक बरामदा मिलता है, मैं वहाँ निकलता हूँ। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. फिर दोबारा मैं ऐसी ऑफिस की बिल्डिंग में, ऐसी बिल्डिंग से निकल के आता हूँ जो 46th स्ट्रीट में थी। जगह का नाम है, गली का नाम है। So that's it for today, because it will be too hard to understand to explain to you. I will explain the whole chapter in one video, but आपके लिए आसान नहीं होगा कि आप एक ही वीडियो में सारा चैप्टर समझ पाए। So we will meet in my next video of part 2 of this chapter, the third. Thank you for being watching.